رکھتے ہیں. میں جناب طاہر جمال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، درخواست کروں گا کہ مہمان کو داعش پر. الامین نیشنل اسکول کے مینیجر جناب احمد ریحان فلاحی صاحب سے درخواست کروں گا تشریف لائیں. آج کی اس نشست کی صدارت کے لیے میں جناب ڈاکٹر نسیم اصلاحی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج کی اس نشست کی صدارت فرمائیں. تشریف لائیں. ایسے پیچھے جو حضرات کھڑے ہیں اگر وہ بھی بیٹھ جاتے تو بہتر تھا. محترم سامعین، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہوں گا پروگرام کی تاخیر پر. آج کا یہ پروگرام دراصل والدین اور سرپرستوں کے لیے منعقد ہو رہا ہے. ہم نے یہ چاہا تھا کہ ہمارے علاقے میں جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں متفکر رہتے ہیں، جو اپنے بچوں کی تربیت اور تعلیم کے لیے فکر مند رہتے ہیں، انہیں صحیح رہنمائی مل سکے. اس کے لیے ایکسپرٹ اس فیلڈ کے جناب مبارک کاملی صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی. وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے، لیکن دکھ ہوتا ہے یہ تعداد دیکھ کر. میرے پاس اس ٹائم 550 اسٹوڈنٹ ہیں اور اس کو ملٹیپلائی کر دیا 2 سے تو 1000 تو کم سے کم ہونے ہی چاہیے. ہم نے پیرنٹس کو بلایا اور صرف آپ کے بچوں کے لیے، اپنے لیے نہیں، کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے رہنمائی مل سکے. یقین مانیے کہ سر موجود ہیں، مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے یہ تعداد ان کو دیکھا کر کے، جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، جس کے لیکچرز، جس کی ڈیٹس آگے کی مستقل بک ہے اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے اور اس کے سامنے سننے والے موجود نہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے. بہرحال ہمارے سبھی کا یہ اصول ہے، یہ کہتے ہیں کئی مرتبہ بھی کہا کہ اگر میرے سامنے 2-4 لوگ بھی ہیں لیکن اس فکر سے بیٹھے ہیں تو میں اطمینان کر لیتا ہوں کہ چلیے 2 ہی لوگ سن لیں گے میری باتیں. جیسے ان کی صحیح رہنمائی ہو گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری محنت قبول ہو گئی. محترم سامعین، اگر ہم غور کریں اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں، اپنے بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں، تو ہم کو 3 موقعوں پر رہنمائی کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے. سب سے پہلے جب میرا بچہ بڑا ہوتا ہے، اسکول جانے کے لائق ہوتا ہے، تب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بے شمار اسکول ہیں محلے پڑوس میں، قرب و جوار میں، اور طرح طرح کی فکر لیے ہوئے ہم اپنے بچے کو کس اسکول میں ڈالیں. وہاں فیصلہ کرنے میں ہمیں پریشانی ہوتی ہے. فلاں میں ڈالیں، فلاں اسکول میں ایڈمیشن کرائیں، اس جگہ پہنچائیں، مدرسے میں ڈالیں. اس طرح کی بہت سارے مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں. ہم اس وقت اکثر ہم سے چوک ہوتی ہے. ہم اس لیے وہاں چلے جاتے ہیں کہ میرے محلے میں کھلا ہوا ہے. ہم اس لیے چلے جاتے ہیں کہ میرے دوست کا یہ اسکول ہے. ہم اس لیے چلے جاتے ہیں کہ میرے دروازے تک گاڑی ایک دم لگا کے اتار رہا ہو. اس لیے چلے جاتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بچے کا فیوچر کہاں سیف ہو رہا ہے، کہاں ہمارے بچے کا فیوچر مستقبل محفوظ ہو رہا ہے، کہاں میں جو چاہ رہا ہوں اپنے بچے کے سلسلے میں میرے بچے کو وہ ملے گا. ان سب چیزوں کو پرے رکھ کر کے ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، صرف سہولتوں کا، رشتوں کا، تعلق کا، ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو پہلا مرحلہ میرے نزدیک ہر والدین کا یہ ہے کہ جب میرا بیٹا بڑا ہوتا ہے تو میں اس کی فکر کرتا ہوں کہ اس بچے کو میں کہاں ایڈمیشن کراؤں. پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ آتا ہے جب وہ پہلا ایگزام دیتا ہے. پہلا کا مطلب پہلا بورڈ ایگزام، 10 پاس کر لیتا ہے، 9 میں پہنچتا ہے، 10 پاس کرتا ہے. تب ہم سوچتے ہیں کہ اب کیا کریں، کہاں لے جائیں. علاقے میں تو کوئی اسکول نہیں ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، کس طرف لے جانا چاہیے. بہت سارے گارجین تو یوں سوچتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نہیں بنا تو کم سے کم میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، اور بیٹے کو ڈاکٹر بننے کی دور دور تک کوئی اس کے اندر دلچسپی نہیں ڈاکٹر بننے کی، نہ شوق ہے نہ وہ چاہتا ہے. لیکن میری اپنی خواہش ہے کہ میں یہ نہیں کر سکا تو میرا بیٹا کرے. میں اس پر اپنی خواہشات تھوپتا ہوں. بہت سارے لوگ ایسا بھی کر لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بہت بڑا عالم دین ہوں تو میرا بیٹا بھی عالم دین بنے، مفسر قرآن بنے، فقیہ بنے.
मेरी फिक्र है तो मैं चाहता हूँ हर हाल में वही बने। इसके बारे में उस वक्त भी परेशानी होती है जब किसी भी एक मरहले को पार कर लेता है बच्चा। ये दूसरा मौका है हमारे लिए परेशानी का। तीसरा मौका उस वक्त होता है जब बच्चा किसी एक उसको शोबे को कंप्लीट कर लेता है, यानी ग्रेजुएशन कर ले या कोई मेडिकल कोर्स किया है या कोई प्रोफेशनल कोर्स किया उसको कंप्लीट कर ले। सर्विस का मसला आता है कि हम उसे कौन सी सर्विस करवाएं, सर्विस करवाएं कि ना करवाएं, और सर्विस अगर है तो प्राइवेट में भेजें या सरकारी नौकरियों में भेजें, वो एक मरहला आता है। तो मेरे नजदीक ये 3 मौके ऐसे हैं जहां हमें सोचना पड़ता है और परेशानी होती है। ठीक है, हर एक का जहन एक जैसा काम नहीं करता। हम कानून के सिलसिले में वकील के पास पहुंचते हैं कि भाई ये मेरा मामला है, आप मुझे मशवरा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए जाते हैं कि वो एक्सपर्ट है, वो माहिर है, वो हमें रहनुमाई करेगा, वो हमारी हेल्प करेगा, हमारी मदद करेगा। इसी तरह से हम मर्ज के सिलसिले में डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, उससे मशवरे करते हैं कि मुझे ये परेशानियां हैं, मुझे किस तरह से इलाज करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए। उसी तरह से कभी बहुत कम ऐसा होता है कि तालीम के सिलसिले में हम तालीम के माहिरीन तक पहुंचे, बहुत कम होता है। जैसे हमने कानून के सिलसिले में मशवरा किया, हमने अपनी सेहत के सिलसिले में मशवरा किया, उसी तरह से मेरे नजदीक सबसे ज्यादा है तालीम के सिलसिले में मशवरा करें हमारे बच्चों की। मेरा बेटा बीमार होता है तो मुझे मेरी आंखों रात की नींद खराब हो जाती है, मैं तकलीफ में मुब्तला हो जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ, फिक्र करता हूँ कि कौन से डॉक्टर के पास पहुंचूं कि मेरे बच्चे की बीमारी दूर हो जाए। मेरे बच्चे की तरबियत का मामला है, फ्यूचर का मामला है, मुस्तकबिल का इंतजार है उस पर, मैं उसके बारे में कल सोचता हूँ कि उसे क्या करना चाहिए, क्या करवाना चाहिए। तो इस मौके पर हम इन चीज़ों पर तवज्जो देते हैं, लेकिन कभी इस तरफ राग़िब नहीं होते, इस तरफ मुतवज्जा नहीं होते कि हम माहिरीन से रुजू करें। आजकल बहुत सारे स्कूलों में, शहर के स्कूलों में काउंसलर इसीलिए मुंतखब किए जाते हैं कि काउंसलर बच्चे के बारे में पूरी तरह से तहकीक करे, पूरी दिलचस्पी के साथ जायजा ले और वालिदैन को की रहनुमाई करे कि आपको इस बच्चे के सिलसिले में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। वो डील करते हैं, बहुत सारी जगहों पे ये पोस्ट क्रिएट की गई है। तो काउंसलिंग करते हैं, करवाते हैं लोग। हमारी तरफ ये चीजें राइज नहीं, हमको बहरहाल करना चाहिए। अगर हम किसी एक्सपर्ट से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, यकीन मानिए कभी आप किसी से मिलकर देखिए अपने बच्चे के सिलसिले में, तो बहुत सारी चीजें जो बहुत इजी थी, बहुत आसान थी, बहुत सिंपल सी थी, लेकिन वो हमारे दिमाग में आई नहीं, क्योंकि वो उस लाइन का है, वो फिक्र करता है, वो सोचता है, रहनुमाई करता है। तो हमारे बच्चे की का गहराई से जायजा लेकर के वो हमें रहनुमाई करता है। और बहुत सारी जगहों पे खुद मैंने पर्सनल देखा है कि अगर रहनुमाई की तो बच्चे आगे बढ़े सिर्फ इसी रहनुमाई की वजह से। तो हम सबको इस बात की फिक्र करनी चाहिए। देखिए, हमारा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसकी तरबियत भी हम फिक्र करते हैं, इसलिए कि हमें उससे लगाव है, मोहब्बत है। और खुद अल्लाह के रसूल की हदीस है कि वालिदैन की तरफ से बेहतरीन तोहफा बच्चों के लिए उनकी तालीम और तरबियत है। इस हदीस के पेश नज़र हमें अपने बच्चे की फिक्र करना चाहिए, उसकी तालीम के सिलसिले में, उसकी तरबियत के सिलसिले में, और हमेशा फिक्रमंद रहना चाहिए। अब ये नहीं कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, मेरा बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, उसको डिस्करेज करें, उसके बजाय ये कि उसको आगे बढ़ाने के, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए उसको हम गधा कहें, बेवकूफ़ कहें, ये सारे अल्फाज हमारे अपने बेटे के लिए किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। ये हमारी तरफ से हमारे ये अल्फाज, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो वालिदैन हो, उनकी तरफ से ये अल्फाज बच्चों को पीछे ढकेलते हैं, बजाय कि आगे बढ़ाएं, बच्चों को पीछे ढकेलते हैं। हमको इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, अगर खुदा न खास्ता मैं नहीं पढ़ सका, मैं तालीम नहीं हासिल कर सका, तो ये जज्बा जरूर होना चाहिए कि मैंने तालीम नहीं हासिल की, लेकिन मेरा बेटा तो कम से कम कर ले, ये है। लेकिन मैं डॉक्टर नहीं बना, मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, मेरा बेटा ही बन जाए, इस चीज़ पर नहीं मुसीर होना चाहिए। ठीक, उसकी सलाहियतों का अंदाजा लगाना चाहिए, उसकी सलाहियतों के मुताबिक उसको उस लाइन पर डालना चाहिए। तो ये गुफ्तगू मैं सिर्फ तमीज़ी इसलिए कर रहा था कि आज हमारे सामने जो शख्सियत मौजूद है वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है। आपने मुबारक काफी साहब ने तकरीबन 4006 से जायद लेक्चर दिया। 6 इसलिए कह रहा हूँ कि 4 दिन से मेरे साथ हैं, 3 दिन से,
वो मेरी मौजूदगी में लेक्चर दिया है, इसलिए उसको मैं शामिल कर रहा हूँ, वरना वहाँ से जो ऑफिस से डाटा मिला था उसमें 4000 से ज़्यादा लिखा हुआ था। इतने लेक्चर उन्होंने तलबा की और वालिदैन की यानी तालीम से मुतालिक उन्होंने लेक्चर दिए हैं। 100 से ज़ायद गैर मुल्कों में इनके लेक्चर्स हुए हैं। और सबसे अहम वाक़या तो मुझे वो याद आता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक मरतबा किसी बच्चे ने IAS एग्ज़ाम में टॉप किया, उसके एजाज़ में एक तकरीब रखी गई और जब तकरीब में उसको बुलाया गया, उसे कहा गया कि आप इस जो आपने एग्ज़ाम पास किया है उसका गुडविल किसको देना चाहते हैं, आप क्या महसूस करते हैं कि आप यहाँ तक जो पहुँचे हैं किसके नतीजे में। उसने जहाँ वालिदैन का नाम दिया, असातिज़ा का नाम दिया, लास्ट में कहा कि मुबारक काबरी साहब के अफरोज़ा बाला मुझे बहुत अहम रोल अदा किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। वहीं वो वाक़या लिखा जिसने ये देखा कि मुबारक सर उसमें मौजूद थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू खुशी के थे कि आज मेरी मेहनत रंग लाई कि पहला मुस्लिम बच्चा IAS के एग्ज़ाम में सिलेक्ट हुआ, उसने एग्ज़ाम निकाला। तो मुबारक साहब ने इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं, सब ने एतराफ़ किया है, सबका एतराफ़ है, बहुत सारे बच्चों का। विगत 2-3 दिन से हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है और देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसका एतराफ़ किया। खुद इनके बारे में ये सुना कि बहुत सारे लोग जो बैरून ममालिक मुकीम हैं, सऊदी में, दुबई में, शारजा में, अजमान में, वो लोग अपने बच्चों को सिर्फ मुबारक साहब से काउंसलिंग करवाने के लिए इंडिया आते हैं, फिर लेके चले जाते हैं। मामूली चीज़ नहीं है कि खाली एक आदमी सफ़र करे अपने बच्चों की काउंसलिंग के लिए मुबारक साहब के पास। वो आते हैं सिर्फ काउंसलिंग की वजह से, काउंसलिंग करवा के जाते हैं कि मेरे बच्चे को कहाँ ले जाना चाहिए और उसके अंदर क्या सलाहियतें हैं, मुझे इस सिलसिले में क्या क्या करना चाहिए। इस तरह के मशवरे करके यहाँ से निकलते हैं। आपको सुनकर हैरत होगी कि इनकलाब अखबार जो आप रोज देखते हैं, संडे में एक कॉलम आता है आपका रहनुमा नाम से। उस कॉलम को ये 21 सालों से बिला नामा लिख रहा है, 21 साल से। अभी सर ने रात में गुफ्तगू हो रही थी मुझसे, तो कहने लगे कि मैं एक दिन एडमिट था, वो भी ICU में, और मेरा कॉलम लिखने का टाइम हो गया। मैंने ICU में भी वो कॉलम लिखा ताकि वो ना बना। मुझ पर नर्स वगैरह गर्म हो रही, नाराज हो रही, डॉक्टर से शिकायत कर रही कि सर ये आपका पेशेंट तो मान नहीं रहा। मैंने कहा हर हाल में मुझे लिखना है, मैंने ये बेड़ा उठाया है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा नागा ना हो और कॉलम पहुँच जाए। 21 साल से बिला नागा इनकलाब में रहनुमा नाम से आपका कॉलम मुस्तकिल शाया हो रहा है। 15 से ज़्यादा किताबें आपने तालीम के सिलसिले में तहरीर फरमाई, 15 से ज़्यादा किताबें तालीम से मुताल्लिक आपकी तसनीफात हैं। आपको कई अवार्ड्स भी मिले अहम सोसाइटियों की तरफ से। बहुत सारे अवार्ड्स आपने हासिल किए, जैसे अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स की जानिब से सर सैयद अवार्ड से सरफराज किया गया आपको। फेडरेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स कुवैत की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आपको, और मुल्क की दीगर कई तंजीमों की तरफ से अवार्ड और असनाद से नवाजा गया है। आपका आबाई वतन रत्नागिरी है, महाराष्ट्र की आपकी पैदाइश है। इब्तिदाई तालीम आपने उर्दू हाई स्कूल से हासिल की। आप एक अरसे तक, और एक सबसे अहम बात मेरे नज़दीक, सबसे अहम बात कि इनकी सारी ये कोशिशें, सारी तवानाइयाँ, बच्चों की तालीम और तरबियत, वालिदैन की रहनुमाई, असातिज़ा की तरबियत, ये सारी कोशिशें लिल्लाह फिल्लाह, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे अफराद बहुत कम हैं कि जो अपना टाइम भी दें, अपनी सलाहियत भी दें, अपना वक्त भी दें, अपना पैसा भी दें, बहुत कम है। आप यकीन मानिए, प्रोफेशनल लोगों से भी रुजू कीजिए, जो मुबारक साहब की, मेरे नज़दीक मुबारक साहब की खाके पा को भी नहीं पा सकते, वो उस लेवल के हैं, लेकिन उनसे आप रुजू कीजिए कि मैं अपने बेटे की काउंसलिंग करवाना चाहता हूँ, तो एक भारी चीज़ बता देंगे, आप हिम्मत ही नहीं करेंगे। ऐसे लोग हैं, ऐसे माहौल में हमारे मुबारक साहब इस तरह से काम कर रहे हैं। अब मैं चाहूँगा
کہ بلا تاخیر مبارک صاحب سے درخواست کروں اور اس معذرت کے ساتھ کہ سر ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ ہم آپ کو وہ مجمع دے سکیں. ہم نے تو اس طرح سے کیلکولیٹ کیا تھا کہ کم سے کم 1000 لوگ نہیں تو 500 لوگ تو ضرور آ جائیں گے. لیکن میں آپ ہی کے فارمولوں کو آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یقین مانیے اس میں جو ہمارے سامنے موجود ہیں وہ یقیناً سنسیئر ہیں, یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کر سکیں. اگر ان میں سے چند لوگوں نے بھی آپ کی باتیں کو سمجھ لیا, اپنا لیا, اس پر عمل کر لیا تو آپ ہی کا جملہ دہراؤں گا کہ ہم لوگ انشاءاللہ کریں گے.